I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. होगा आप नेक्स्ट टाइम आए तो यहाँ पर। तो चलिए मंदिर के अंदर चलेंगे। इस प्रकार द्वार है, तो अभी हम चल रहे हैं अंदर मंदिर के अंदर। देखिए ये नज़ारा है मंदिर का। ये मुख्य द्वार है जिसमें से हम एंटर हो रहे हैं। और दियाओं का स्टैंड देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही पुराना स्टैंड है। और यहाँ पादुका है खंडोबा का। यहाँ पहला दर्शन कर जाते हैं, और माता का और खंडोबा का दोनों का पादुका है, जो भक्त लोग आके दर्शन करके जाते हैं। ये ज्योति का स्टैंड है, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। और देखिए अभी हम खंडोबा मंदिर के अंदर है, और इस प्रकार का नज़ारा है। सुबह का टाइम है, तो बहुत ही अच्छा सूर्य भगवान का रोशनी है। तो ये दियाओं का स्टैंड है, बहुत ही बड़ा स्टैंड है, और इतना आकर्षित है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना सुंदर है, कई साल पहला बनाया सो है ये।
यहाँ पर भगवान गणेश का खड़े हो सब मूर्ति है, तो ये बहुत ही विशेष है। अपने को सब मंदिरों में गणेश भगवान बैठे हुए दिखता है, लेकिन यहाँ पर खड़े हैं सो है। बहुत ही खूबसूरत है मंदिर, एकदम शांत है और भक्तगण नहीं है। तो सुबह सुबह का टाइम है ना, और गांव रहने की वजह से भक्तगण नहीं है, तो पूरा मंदिर दिखाने का एक अवकाश है आप लोगों को। अभी हम आएंगे छोटा सा मंदिर पर, यहाँ पर भगवान गणेश का मूर्ति है। और मंदिर विशाल है, इसके 2 द्वार है, एक मुख्य द्वार है और एक पूर्व की तरफ है जो गांव के दूसरा तरफ जाएगा। चलो अभी हम मंदिर का पर्यटन कर रहे हैं। आगे आगे चलेंगे खंडोबा का मंदिर दर्शन करने के लिए। ये मंदिर का पर्यटन है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा झाड़ है और मंदिर का पीछे का भाग किस प्रकार दिखता, तो ये आप लोगों को बताने के लिए मैं कोशिश किया। और यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा था, तो मैं समझा आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। ये झाड़ के बीच में से जो मंदिर दिख रहा है बहुत ही सुंदर है, तो ये नज़ारा दिखाने के लिए मैं इधर आया आप लोगों को। और अभी तो ये अलग भाग से है जो शिखर दिख रहा है आपको, बहुत ही सुंदर है और सुबह का टाइम है। अभी हम चल रहे हैं एग्जैक्टली पीछे की तरफ और यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक झाड़ है और खंडोबा मंदिर के पीछे भाग से मंदिर का शिखर इस प्रकार दिखेगा। देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए बहुत ही सुंदर है और बहुत कलरफुल है। सब भगवानों का चित्र है इधर और झंडा लहरा रहा है और आकाश को टच हो रहा है, इस प्रकार मालूम हो रहा है खंडोबा मंदिर। और हम अभी आ रहे हैं सामने की तरफ, मंदिर के सामने की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर ये अलग एंगल से निकाला है। ये चित्र हमको अच्छा लग रहा था तो हमने निकाला है। चलिए 2-4 भक्तगण आए हैं दर्शन करने के लिए और उन लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं। ये अभी हम आए हैं सामने भाग में, यहाँ पर 1-2 झाड़ है और ये भी दिया का स्टैंड है, बहुत ही बड़ा है और ये मंदिर का प्रवेश करने का जगह है। अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर और भगवान को प्रार्थना कर कर उनका दर्शन लेंगे। भगवान खंडोबा का मंदिर बहुत पुराना है और ये पिलर पूरा पत्थरों से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है और एकदम नीट है। यहाँ पर भगवान खंडोबा का बहुत ही पवित्र स्थान है और ये बाले का कुछ अलग विशेष है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को इसके इतिहास बताने के लिए। ये खंडोबा का दर्शन है, जय खंडोबा, और खंडोबा का पादुका यहाँ पर है जो भक्तगण आकर प्रार्थना करते हैं और खंडोबा का दर्शन लेते हैं।
कितना सुंदर मंदिर है ये, बहुत ही शांत है यहाँ पर। देखिए खंडोबा का मूर्ति कितना सुंदर है। मंदिर के अंदर से इस प्रकार दिखेगा। चलिए अभी हम कोई गांववासी परिचय हो गया तो उनके ज़रिए आपको इस बाले मंदिर का पूरा इतिहास बताएंगे। तो श्रद्धा से सुनिए और जानिए इसका विशेष क्या है। चलिए हम उनसे पूछताछ करेंगे। ये है खंडोबा मंदिर जो बाले में है और शोलापुर से कुछ 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के दूर पर है। और सभी भक्तों को अभी ये इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, परिचय देंगे। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जितेंद्र संजीव पाटिल। अच्छा। मैं यही पास में ही रहता हूँ। ओके। आई एम सिविल इंजीनियर। ओह वेरी नाइस। ठीक है ठीक है। तो हमको थोड़ा ये खंडोबा मंदिर के बारे में बताएं ताकि सभी भक्तों को मालूम हो कि यहाँ का प्रसिद्ध क्या है और ये मंदिर कितना पुराना है, क्या है। थोड़ा सा हिस्ट्री जो भी आपको मालूम है वो बताइए। यहाँ का मंदिर सोलापुर से लगभग ओनली 4 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। ये मंदिर 300 से 400 साल पुराना है और वो 300 से 400 सालों से यहाँ की जो प्रथा परंपरा है जो उस समय थी वो अभी भी कायम है। और उन्हीं उत्साह के साथ, वही लगन के साथ यहाँ के जो गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग, तो वो फॉलो करते हैं, उसको अच्छे से आगे नेक्स्ट पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और ये सभी जैसा चल रहा है वैसा चलाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो भी बड़े कार्यक्रम कुछ होते हैं ना, यहाँ यात्रा क्या बोलते हैं मराठी में? मराठी में उसको यात्रा बोलते हैं। हाँ यात्रा। तो कौन सा टाइम पे ज़्यादा भीड़ होता है, सब भक्त आते हैं ना? मोस्टली दिसंबर के 4 जो संडे होते हैं दिसंबर के, तो दिसंबर के 4 संडे में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। इसके लिए बहुत भीड़ रहती, होल डे प्रोग्राम अरेंज होते हैं। और दिसंबर के लास्ट जो संडे होता है, दिसंबर मंथ का लास्ट संडे, बड़ा फायर वर्क की अरेंजमेंट यहाँ गांव की तरफ से किए जाते हैं। और मैनी डिफरेंट फायर वर्क यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। कुछ सोशल मैसेज उनके थ्रू हम लोगों को देना चाहते हैं। और 4 संडे हम छबीना बोलते हैं उसको, जहाँ भगवान अपनी पालकी में बैठ के सबसे पहले धनगर समाज के ढोल होते हैं, ढोल के बाद घोड़ा होता है भगवान का, और घोड़े के बाद भगवान की पालकी होती है। और जो गांव के सभी जाति धर्म के लोग हैं, उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी से कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी है। उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पीढ़ी के युवक और उनके घर के
सभी लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते आ रहे हैं और वैसा ही यहाँ हो रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अभी खंडोबा जो है वो कुछ अवतार है या कोई भगवान का ये है? खंडोबा मेनली महादेव का अवतार है। महादेव का अवतार है। खंडोबा के 14 महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक में 14 ऐसे प्रमुख प्लेसेस है जहाँ खंडोबा के मंदिर है। जैसे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ ऑल इंडिया में माता रानी देवी के हैं। वैसे ही खंडोबा भगवान के 14 फेमस टेम्पल्स महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र में है। उसमें से बाड़े और यहाँ की नज़दीक 45 किलोमीटर पर अंदूर नाम का टेम्पल है। वो मोस्टली कोरिलेटेड ए टेम्पल है। इसके फेस्टिवल और जो रिवाज है वो बहुत कॉमन है। उस मंदिर और हाँ इधर जैसा होता है उधर भी वैसा होता है। बहुत अच्छा है। यहाँ जो बाड़े में जो भगवान ने अवतार लिया है, हाँ, वो वहाँ से है, अंदूर गांव से ही यहाँ भगवान ने अपना प्रस्थान करके सभी लोगों को दर्शन दिया। अच्छा। और मैंने सुना यहाँ पर कोई छोटा लिंग है जो मूर्ति के नीचे है, तो वो लिंग के नाम से ये गांव आया है। वो मैं सुना है। मानकोजी पाटिल नाम के हमारे ग्रैंडफादर थे। 300-400 साल पहला वो डेली अंदूर नाम के गांव के यहाँ जाते थे और दर्शन करके वापस आते। वो ये वर्क अपना रोज़ करते थे, लेकिन उनके तबीयत जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उनकी लाइफ के अंतिम समय में उनको दर्शन हो नहीं पा रहा था। तो भगवान उनको सपने में आए, उनको दृष्टांत दिया कि तुम्हारा जो घर है उस घर में मैं स्थापन होऊंगा, तो तुम आगे चलते रहना। तो आगे चलते रहने के बाद उनको पीछे से घोड़ों की आवाज़ आ रही थी। और जब वो यहाँ आए और उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि भगवान ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, तो ऐसा क्यों नहीं। तो पीछे देखा तो पीछे छोटा सा शिवलिंग था, जो आज की मूर्ति के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग है। तो मराठी में छोटे बच्चों को बाळ बोलते। तो बाळ शिवलिंग मतलब एक छोटा सा शिवलिंग जो छोटे शिव का स्वरूप था, इसलिए हमारे विलेज का नाम उससे बाड़े रखा गया था उसलिए। तो उस दिन से हमारे विलेज का नाम अभी भी बाड़े ही है। तो हमारी मूर्ति के नीचे छोटा सा शिवलिंग है जो शिव जी का बाल स्वरूप को दर्शाता है। और उस शिवलिंग के ऊपर भक्तों को दर्शन हो, इसलिए मूर्ति की प्रतिष्ठापना यहाँ हमारे गांव के जो पीढ़ीजात पुजारी लोग हैं वो करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। चलो सभी भक्तों को एक ये क्या बोलते हैं अपना मालूमात हो। चलिए, मंदिर का पूरा इतिहास अपने को मालूम हो गया और बहुत ही खुशी मालूम हो रहा है। तो अभी हम चलेंगे मंदिर घर की तरफ। अभी हम वापस जाएंगे। ये मंदिर का एक नज़ारा देखिए। मंदिर के अंदर से इस प्रकार दिखेगा। जो मेन द्वार है वहाँ से जाना पड़ेगा। और अभी हम तो चलते हैं गाइस।
ये ब्लॉग इधर ही एंड कर देते हैं। तो कृपया आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, और हमारे चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स को ज़्यादातर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कमेंट कीजिए। इसका इंतज़ार मैं करता हूँ। आज के लिए ये ब्लॉग एंड करेंगे। हरिओम। अलविदा दोस्तों। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में। तब तक आनंद लें और अपने आप को स्वस्थ रखें।